Hello, welcome back again to the channel Pharmaceutical Formulation Research and Development. So, as I promised you in my first lecture, I am here with the first of all lecture or the first part of the series of Formulation Research and Development. So, to begin with, I will start with the structure of the formulation R&D or a pharmaceutical R&D. Once that is done, we will move ahead with how the project comes, how we work on a project, and how the project moves, how are the developmental activities going on, how we are able to understand the or how we are able to work with the other departments to bring about our activities. That we will study as we move ahead. Then how we develop a full-fledged product, how we make it a successful tech transfer, and how we commercialize it. All aspect I will be making you understand. So before going to the initiation of development, first of all we'll have to understand what are the departments, how do we work, how a formulation developmental person at different phases of his working, how he will interact with the different department, how and when there will be a need to discuss with the other departments, how to cope up with the other department, how to cope up with the pressures and all needs to be understood. So that is the purpose. So basically, first of all, you should understand the whole structure. Then only you will be able to understand what work needs to be done from where and whom you have to contact for which type of work, whom you coordinate day in, day out, and what is the focus of the different members of the team to move the project ahead. So to understand or for any research and developmental activity, one should understand what a formulation development scientist does and how are the other departments across him helping or coming together to move the project, and how we interact with them, how we make the activities, how we decide, how we take decisions, how we come to consensus and all. It depends upon how you manage all these things, and for that you should know each and every department very well. So in today's series, first of all, I will try to explain the complete formulation developmental department, and if time permits, I will take you across the other department in a very fast way. If at all I am not able to cover the complete thing, so today at least I will cover the formulation developmental department, and once that is done, maybe tomorrow series we will see other department what work they do and how they support to us. So to begin with, let us hope, or with a very enthusiastic mood, I am starting this lecture, and as I told you, I might shift to the other language to come to or to make you understand. And so let us start with a basic formulation developmental structure or R&D development structure across the industry, and not only the structure about the R&D, but across industry what is the structure we will see today. Okay. So basically, any formulation development industry or any pharmaceutical research developmental activity, the center team is F&D team. This is the formulation and developmental team. Okay. So being a first lecturer and not technologically competent, I am seeing this F&D returned in a different way. So I will first check in the camera whether this is coming okay, otherwise my efforts will go waste. Okay. So welcome back. In the meantime, I have managed to get the correct image. It was otherwise coming ulta pulta.
So now it is done. So as I told you, for any pharmaceutical R&D, the F&D, that is the formulation and development department, is the center point. This is the centermost point of any research and development. So when I say F&D, what does F&D does? So एकदम शॉर्टकट में अगर बोलना है तो फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट इज द डिपार्टमेंट which manufactures the dosage form, which manufactures or which convert a pharmaceutical API into a finished dosage form. And any finished dosage form is called as a drug product. And any API or active pharmaceutical ingredient is called as a drug substance. So, what does a formulation scientist do? Formulation scientist converts this drug substance into drug product. Simple thing. So basically the API or active pharmaceutical ingredient, whatever is available in the market, the pharmaceutical scientist converts into a dosage form, required dosage form. It can be a tablet, capsule, solution, suspension, MERBS tablet, MERBS capsule, injection, or any dosage form. So, responsibility of formulation developmental scientist is to prepare a dosage form. So, here first of all, I will just give you a very superficial responsibility, and once we enter the F&D completely, then I will give you the details about each and every activity which a formulation and development scientist is supposed to do. As of now, formulation development scientist is the person who is converting the drug substance into drug product, or he is manufacturing a dosage form by taking the API, that is the raw material, along with the different excipients. And what is the purpose? The purpose of doing this is to give the medicament to a patient, or make such a medicament that will give the required effect. If it is required for immediate release, we will formulate it into an immediate tablet. If it is required for a long lasting action or for action across the day, it will be a sustained release or extended release tablet. Or if it is required for a delayed response, it will be an entry coated tablet or entry coated capsule, and all with the purpose. So once we enter and once we get into more and more discussion, each and every dosage form, intention, how to do, and how to develop, we will discuss. And what is the purpose and how you decide whether it will be an immediate release tablet or sustained release tablet, or how you make the decision, we will discuss once we go into this. Before that, let us first understand the complete infrastructure, or what is the F&D. So as I told you, F&D will convert drug substance into drug product. Now F&D, amongst this F&D also there can be many type of department or many divisions, and from organization to organization this department will keep on changing. In some organization the department are divided based upon the market for which the dosage has to be developed. In some organization the department is subdivided based upon the type of dosage form being worked. In some organization there is no division and a single person do all the activities, but there are certain groups and all in F&D also. So first we will discuss based upon the market requirement what are the or based upon the type of market working, what can be the departments. So the first basic, the biggest department which come usually with F&D is formulation development for the US market. US market. So any person who is developing a generic molecule
for the US market, he will be into the US market, and that will be the generic developmental department for US development, and it is also called as ANDA. And full form of ANDA is abbreviated new drug application. So one department will work for the US market, and they will prepare generic product, and this generic product will be subjected to the US market. That's why it is called as the US FDA has given it as a name of ANDA. So in this US market product, of course, all the dosage forms are included, and this dosage form include the solid, liquid, capsule, tablet, mouth dissolving film, oral dispersible, and all type of dosage forms can be manufactured depending upon the innovator. So one department is the US department, and then second department or second division can be the team which is working for the Europe market. So the team which is working for the Europe market, it works usually for the UK market and Europe market, and it is, guys, as this is guided by the US FDA, or as this comes upon US FDA. If you ask me what is US FDA, US FDA is the regulatory body or the department in the US which approves the product which can be marketed in the US. For you to manufacture any product, you have to get the approval of the US FDA, and if you have to market it in the US market. Similarly, for Europe product, you will have to approach the MHRA. So as this is the US FDA, that MHRA is there in Europe market, and you have to, for putting the product in Europe and US market, you have to comply with the guidance of the MHRA. Here you have to comply with the guidance of the US FDA. So the people who are working with Europe group are a Europe group, then there can be a US or ANDA group. Then there can be another group is ROW group. So what is ROW? ROW is the rest of the world apart from US and Europe. So why this division, you will ask. So since for US market, whenever you manufacture a product, जब भी आप कोई प्रोडक्ट, okay, I think I should switch on to Hindi as I have promised. So जब भी आप कोई US मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको US FDA के पास सबमिट करना पड़ता है, और US FDA के अपने गाइडलाइंस, अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट देखकर ही वो लोग हमको अप्रूवल देते हैं। तो आपको ये पूरे गाइडलाइन क्लियर करना पड़ता है, तो इसके लिए आप उसका US का अलग होगा। अब ये ऐसा होता है कि कुछ बेसिक डेवलपमेंट का एक्टिविटी सेम होता है, लेकिन गाइडलाइन US से यूरोप में डिफरेंस हो जाते हैं। ये गाइडलाइन भी मैं जैसे आगे आगे जाऊंगा, एक एक डिपार्टमेंट आपको बताऊंगा तो मैं क्या डिफरेंस होता है, आई विल शो इट टू यू। लेकिन एज ऑफ नाउ उधर से इधर डिफरेंट होता है। फिर ROW, US और यूरोप छोड़ के बाकी सब जो है वो ROW में आता है। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो डिपार्टमेंट होता है, ये ROW डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर जो आप डेवलप करते हो, ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए होता है। कोई भी एशियन मार्केट हो सकता है, सऊदी मार्केट हो सकता है, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान, एनी टाइम मार्केट, इट विल कम इनटू ROW market. Apart from this ROW market, one more market is the domestic market. Domestic market is the Indian market. So अगर आप देखें तो क्या होता है कि US और यूरोप में और कुछ हद तक ROW में भी आप क्या करते हो, जेनेरिक प्रोडक्ट करते हो। वहाँ के जो इनोवेटर्स होते हैं उन जैसे प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में डालते हो, बाइक्विवेलेंट प्रोडक्ट बना के। बट जब आप डोमेस्टिक में करते हो तो ये आप नया प्रोडक्ट डालोगे यूजुअली, तो बेसिक रिसर्च रहेगा आपके पास, ज़्यादा कोई इनोवेटर नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और यहाँ पर पूरी बेसिक रिसर्च होती है। यहाँ पर जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, ये आपको यहाँ का जो लोकल बॉडीज होते हैं उनसे अप्रूवल्स लगते हैं, और इंडियन FDA से आपको अप्रूवल्स लगते हैं इसके लिए। इसके भी डिटेल्स में जब उस मार्केट में एंटर होंगे तब बताऊंगा। तो डोमेस्टिक मार्केट इंडियन मार्केट के लिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे मार्केट आते हैं। ये होता है ब्राजील मार्केट, जापान मार्केट, चाइना मार्केट। तो ये सब जो मार्केट दिख रहे हैं आपको, ये
कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे डॉक्टर रेड्डीज है, उनके पास में अपना चाइना मार्केट का अलग है, बिकॉज वो लोग उसको केटर कर रहे हैं। उसी हिसाब से जापान का किसी के पास मार्केट होता है, ब्राज़ील का अगेन माइलान में है, डॉक्टर रेड्डीज में है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग मार्केट को केटर करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ये होता है। तो यहाँ पर आप कभी कुछ न्यू रिसर्च भी चलता है और कभी कुछ जेनेरिक रिसर्च भी चलता है, एंड ऑल ओवरऑल इन सभी डिपार्टमेंट का पर्पस जो है ये है कि ड्रग सब्सटेंस को ड्रग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, एक डोसेज फॉर्म बनाना जो कि आपको डिजायर्ड एक्शन दे सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस मार्केट। अब इनमें से सभी मार्केट के लिए जो भी आप काम करते हो तो बेसिक काम सेम रहेगा, आप डोसेज फॉर्म बनाओगे उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए, लेकिन आपको इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर कंट्री के उस पर्टिकुलर रीजन के गाइडलाइन फॉलो करते हैं, इसके लिए ये डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट पूरा एक जगह भी हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट जो यूएस में काम करे वो यूरोप में भी करे, वो आरओडब्ल्यू में भी करे, चाइना में भी करे, एज एंड व्हेन जैसे प्रोजेक्ट आए हैं वैसे करे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, या कुछ डेडिकेटेड ही लोग करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेजर चांसेस ये है कि यूएस यूरोप अलग होता है और बाकी सब मिलकर भी कर लेते हैं और उस गाइडलाइन को एडहियर करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि यूएस में आप बनाते हो और उसको यूरोप के हिसाब से भी कंप्लाई करने करते हो, और आरओडब्ल्यू में बनाते हो और उसको आप यूएस से कंप्लाई करने को करते हो। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन यूएस वाला प्रोडक्ट आप आरओडब्ल्यू मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में भी डालने को करते हो, क्योंकि आपने एक बार डेवलप कर दिया। और अगर गाइडलाइन के जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन, जैसे यूएस में कोई गाइडलाइन है जो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ के गाइडलाइन के हिसाब से आप उसको टेस्ट कर लो और डाल दो मार्केट में, तो उस हिसाब से अक्रॉस द मार्केट ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। या कभी एक कंबाइंड भी डिपार्टमेंट होता है, कभी अलग अलग भी डिपार्टमेंट होता है, तो ये डिपेंड करता है। तो दिस इज द बेसिकली ओवरऑल एफ&डी में ये डिपार्टमेंट होता है, अगर आप मार्केट के हिसाब से अगर बात करते हैं तो। अभी इसमें आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, फिर कुछ हद तक आरओडब्ल्यू और ये सब भी करते हैं, इसमें भी ये है। तो ये इन डिपार्टमेंट के अलावा ये मार्केट के हिसाब से डिपार्टमेंट हो गए हुए हैं। अभी अगर थोड़ा सा मोटा मोटा अगर देखा जाए या मैं बोलना चाहूँ तो ये सब यूएस, यूरोप, आरओडब्ल्यू ये सब जो होता है ये हो गया है आपका क्या, जेनेरिक। यूजुअली जो इनोवेटर है उसका बायो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनाकर आप जेनेरिक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एफ&डी में और एक डिपार्टमेंट हो सकता है, और ये मार्केट के बेसिस पे नहीं है, लेकिन ये है, ये होता है आपका एनसीई, न्यू केमिकल एंटाइटीज। इसमें व्हाट डज दिस डिपार्टमेंट डू? दिस डिपार्टमेंट इज अ न्यू केमिकल एंटाइटी डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि ड्रग सब्सटेंस भी सिंथेसाइज करके उसके एक्टिविटीज डिटरमाइन करते हैं, और ये जब तक आप बनाते हो तो पूरे वर्ल्ड में वो मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किसी के पास भी अवेलेबल नहीं होता। फर्स्ट टाइम बना रहे हो, ये ऑफकोर्स बहुत लंबा 15 से 20 साल का काम होता है, बट एनसीई डिपार्टमेंट होता है और मेजोरिटी ऑफ कंपनीज इस पर भी काम कर रहे हैं, हालांकि स्लो कर रहे हैं, बट दैट वर्क इज ऑल्सो गोइंग ऑन। ये बताने के पीछे ये है कि अगर आप पूछते हो कि बेसिक रिसर्च या इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, तो हम एनसीईज में करते हैं, जहाँ पर आप एक नया ड्रग सब्सटेंस आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, उसके टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं, उसके बेनिफिट स्टडी करते हैं, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स में लेके जाते हैं। पहले एनिमल्स पे स्टडी होती है, एनिमल से वॉलंटियर्स पे होती है, फिर पेशेंट पे होती है, फिर पेशेंट से वो उसका डोसेज फॉर्म बनता है, डोसेज फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का अभी जो भी ये एपीआई बन गया, नया फर्स्ट टाइम बन गया, उसको किसी सूटेबल डोसेज फॉर्म में कि कौन सा डोसेज फॉर्म सूटेबल रहेगा उस हिसाब से एनसीई में कन्वर्ट करते हैं, एनसीई में बनाते हैं। तो ये वन मोर डिपार्टमेंट हो गया है। सो ये तो हो गया है डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चरिंग बेस्ड ऑन द मार्केट और बेस्ड ऑन वेदर जेनेरिक और आरओडब्ल्यू, जेनेरिक और न्यू केमिकल एंटाइटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक डिवीजन होता है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सो मार्केट के हिसाब से तो आपने डिवीजन देख लिया। अब होता है डोसेज फॉर्म के हिसाब से भी डिवीजन होता है। तो डोसेज फॉर्म के हिसाब से डिवीजन होता है तो यूजुअली एक डिवीजन होता है कि ओरल प्रोडक्ट का। क्या होता है ओरल प्रोडक्ट? आप सभी फार्मा स्टूडेंट हो, बीफार्म, एमफार्म हो,
और वर्किंग हो तो आपको पता है ओरल प्रोडक्ट जो होते हैं जो कि माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर होते हैं, तो ऐसे सभी प्रोडक्ट जो आप माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर करोगे तो वो ओरल प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये एक डिपार्टमेंट सेपरेट होता है। तो जब आप ओरल प्रोडक्ट बोलते हो तो ओरल प्रोडक्ट में बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट आते हैं। तो इसमें हो जाता है आपका टैबलेट्स, ओरल टैबलेट, सेकंड हो गया आपका कैप्सूल, टैबलेट में फिर आईआर है, सस्टेंड रिलीज है, या डिलेड रिलीज है, या एक्सटेंडेड रिलीज है, लॉन्ग एक्टिंग है, ये सब टैबलेट में आ गया। कैप्सूल में भी वैसे हो सकता है, ऑफकोर्स इमीडिएट रिलीज कैप्सूल हो सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग कैप्सूल हो सकते हैं। ये हो गया आपके ओरल प्रोडक्ट में। अगेन 2 डिवीजन हो जाते हैं, एक सॉलिड ओरल और लिक्विड ओरल। तो ऑफकोर्स जो डोसेज फॉर्म सॉलिड की सूरत में बनाए जाएंगे दोज विल बी द सॉलिड ओरल। टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, फिल्म हो गया, माउथ डिसॉल्विंग फिल्म हो गया, ये सब सॉलिड में आ जाएगा, सॉलिड ओरल। और लिक्विड ओरल में क्या आएगा, लिक्विड ओरल तो लिक्विड ओरल में आएगा आपका सॉल्यूशन, सस्पेंशन, पाउडर फॉर सस्पेंशन, ये दोनों में भी हो सकता है, सॉलिड भी बोल सकते हैं इसको, लिक्विड भी बोल सकते हैं। पाउडर फॉर सस्पेंशन, और इस तरीके के काफ़ी सारे डोसेज फॉर्म्स, सस्टेंड सस्पेंशन भी आते हैं आजकल। और ये तो बेसिकली एफ&डी में एक डिपार्टमेंट हो गया, ओरल प्रोडक्ट का होता है। ओरल प्रोडक्ट में अगेन ओरल सॉलिड, ओरल लिक्विड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अगेन ये सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं कि लिक्विड का एक टोटली सेपरेट लैब जहाँ पर खाली लिक्विड के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि सॉलिड का अलग लैब, और वहाँ पर सॉलिड के पूरे टैबलेट, कैप्सूल्स के, मब्स के, उसके ये हो। तो ये अलग अलग टीम हो सकती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी हो सकता है कि कंबाइंड हो सकती है। मैंने काफ़ी अपने करियर में शुरुआत में लिक्विड डोसेज फॉर्म किया, लिक्विड ग्रुप माना जाता था। फिर वहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन में इक्का की बात कर रहा हूँ, वहीं मैंने ओरल टैबलेट्स में शिफ्ट हुआ, फिर ओरल लिक्विड ग्रुप हुआ। फिर मैंने इनमें से कंबाइंड भी किया काम, ओरल और लिक्विड पे भी काम किया। वहाँ मेजॉरिटी ऑफ माई वर्क इन इक्का वॉज फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर ओरल लिक्विड्स एंड ओरल सॉलिड्स। और ये मैं मेजर डोमेस्टिक मार्केट के लिए किया। और बाय द टाइम आई लेफ्ट इक्का आई वाज एसोसिएटेड विद इक्का फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। वहाँ पर मैंने कुछ टाइम पर यूरोप के लिए भी काम किया, यूरोप मार्केट के लिए। दैट वाज माय लर्निंग ओवर दैट। तो जैसे मैंने बताया कि फिर ओरल प्रोडक्ट हो गया, उसमें सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये 2 टाइप के डोसेज फॉर्म्स में आप काम करते हैं। और इसमें फिर मल्टीपल डोसेज फॉर्म्स आते हैं। आप टैबलेट बोले तो काफ़ी सारे टैबलेट हो जाते हैं। आप सस्पेंशन बोले तो होता है आपका डायरेक्ट सस्पेंशन होता है, पाउडर फॉर सस्पेंशन होता है, रेडी मिक्स सस्पेंशन होता है, ऑयल बेस्ड सस्पेंशन होता है, बहुत कुछ हो सकता है। और ये फिर अगेन आप ओरल का प्रोडक्ट को आप डोमेस्टिक में डेवलप कर रहे हो या यूरोप में कर रहे हो या यूएस में कर रहे हो, उसके हिसाब से गाइडलाइन फॉलो करो। आप लिक्विड को भी किस मार्केट में कर रहे हो उस हिसाब से आप गाइडलाइन फॉलो करो। तो ये हो गया ओरल और लिक्विड का। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट होता है इंजेक्शन। तो बेसिकली इंजेक्शन में मेरा एक्सपर्टाइज उतना नहीं है, बट मैं मेरे फर्स्ट जॉब इक्का में मैंने एसिक्लोफेनाक इंजेक्शंस पे काम किया है, वो जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो मेरे को इंजेक्शन का फेयरली आइडिया है, लाइफ इंजेक्शन का आइडिया है। बट फिर उसके बाद में मैंने सेकेंड जॉब में यूएसडी में भी काम किया, बट उसके बाद ज़्यादा काम नहीं किया है। तो यूजुअली इंजेक्शन एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी होता है, लेकिन बहुत रेयरली कंबाइंड होता है। बट कुछ देयर आर फ्यू लकी पीपल हु गेट्स टू वर्क इन दिस एंड इन दिस विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। किसी को ओरल प्रोडक्ट भी मिल जाए, इंजेक्शन भी मिल जाए, तो मेरे हिसाब से लकीस्ट पर्सन है कि ये दोनों डोसेज फॉर्म एक साथ करने मिले। अदरवाइज दिस इज ए सेपरेट डिपार्टमेंट। और इंजेक्शन से इंजेक्शन में भी अगेन बहुत सारे आते हैं, पाउडर फॉर इंजेक्शन, सस्पेंशन फॉर इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन, वाटर बेस्ड इंजेक्शन, ऑयल बेस्ड इंजेक्शन, देयर कैन बी मेनी। ये जैसे जैसे इस डोसेज फॉर्म को हम आगे आगे जाएंगे तो मैं आपको इस डोसेज फॉर्म के भी रिलेटेड में आपसे डिस्कशन करूँगा। तो इंजेक्शन डोसेज फॉर्म जो है वो आगे में एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा और एक डिपार्टमेंट आता है कि टॉपिकल। सो ओरल जो आप माउथ के थ्रू ले रहे हैं, इंजेक्शन जो आप माउथ के लिए नहीं ले रहे हैं, अदर रूट से ले रहे हो, यूजुअली इंट्रामस्कुलर, आईवी और ये सब जो सब इंजेक्शन है
और इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। आई थिंक आपने बी फार्म फर्स्ट ईयर में, मेरा टाइम तो बी फार्म फर्स्ट ईयर में था डोसेज फॉर्म टेक्नोलॉजी में, अभी कौन से इसमें है पता नहीं। उसमें आपने पढ़े ही होंगे इंट्राथीकल इंजेक्शन और सबक्यूटानियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, दैट कैन बी मेनी इंजेक्शन। इसके भी टाइप्स, जब उस टाइप पे जाएंगे तो ये करेंगे। तो ये हो गया, ये दोनों भी क्या है, डायरेक्ट बॉडी में और ब्लड फ्लो में जाएंगे। ये थ्रू एब्जॉर्ब होकर जाएगा, ये डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। थर्ड इज द टॉपिकल डोसेज फॉर्म। सो व्हाट इज द टॉपिकल डोसेज फॉर्म? ऑल आपके क्रीम्स और लोशंस और बहुत सारे जो भी चीज़ें आप स्किन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हो, ऑल दोस थिंग विल कम इनटू टॉपिकल डोसेज फॉर्म। ये लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट है, यहाँ पर उतना इंडस्ट्री में टॉपिकल डोसेज पे काम नहीं करते। ये है, इसका मुझे बस पूरे करियर में एक ही प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, तो ये जब आएंगे उस स्टेज पे तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली एफ&डी में जैसे मैंने बताया आपको, पहले मार्केट के हिसाब से कौन से मार्केट पे काम कर रहे हो, यूएस, यूरोप, ROW और चाइना, ब्राज़ील, ये सब मार्केट, और उसके हिसाब से अगर बाइफर्केशन हो सकता है। उसके अलावा फिर बाइफर्केशन अगर आप डोसेज फॉर्म से देखें तो ओरल में सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड में और मैं बताना भूल गया इमल्जन्स भी होते हैं, और अभी वो सब नैनो पार्टिकल, नैनो क्रिस्टल जो कि इंजेक्शन और लिक्विड्स में कर रहे हैं, उसकी अभी उतनी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई है, बट ये भी डोसेज फॉर्म्स होते हैं। तो इन डोसेज फॉर्म्स का भी आ रहा है। ये डोसेज फॉर्म्स अभी इतने मार्केट में आएंगे, बट दैट ऑल्सो दैट। फिर इंजेक्शन जो कि डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में दिया जाता है, वो डोसेज फॉर्म और टॉपिकल। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप यूएस में काम करो और ये पूरे डोसेज करो, या आप यूएस में करो ये एक ही प्रोडक्ट करो, ओरली करो, या यूएस में करो आप खाली लिक्विड में काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या आप यूएस में काम कर रहे हो और आप ओरल भी बना रहे हो, इंजेक्शन भी बना रहे हो, सॉलिड भी बना रहे हो, लिक्विड भी बना रहे हो, ऐसा। या आप यूरोप में काम कर रहे हो और आप ये सब डोसेज फॉर्म बना रहे हो, इसकी भी टीम हो सकती है आपकी। या आपकी एक टीम हो सकती है कि आप खाली यूरोप के सॉलिड ओरल बना रहे हो, या आप यूरोप के खाली लिक्विड ओरल बना रहे हो, या यूरोप के लिए आप खाली इंजेक्शन बना रहे हो। देयर कैन बी मेनी टाइप ऑफ थिंग्स, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से अलग अलग से इस तरीके से डिवाइड करता है। दिस इज व्हाट टोटली ऑल अबाउट F&D डिपार्टमेंट। सो आई गेस दिस इज इनफ फॉर टुडे। कल मैं आपको बाकी के सब डिपार्टमेंट का शॉर्टकट में बता दूंगा कौन से डिपार्टमेंट और होते हैं। होप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप ये नीचे कमेंट्स में जाकर आप बता सकते हैं कि मैंने कुछ और तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, तो विल कंसिडर दोज एक्सप्लेनेशन। आपके कमेंट्स को मैं देखकर उसके हिसाब से भी रिस्पॉन्स करूँगा। आपको लगता है कि कुछ चीज़ आप सीखना चाहते हो और मेरे पास वो रिलेवेंट नॉलेज है, तो मैं आपको उसमें भी कवर करके बताऊँगा। सो लेट अस सी। और हाँ, एक बंदा भी अगर इसको व्यू कर रहा है तो मैं जब तक हो सके डेली इसको अपलोड करूँगा, एज लॉन्ग एज इवन 1 पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लर्न करें तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अरे व्यूज़ नहीं आए या लोग देखे नहीं है तो इसके लिए बंद कर दूंगा, नहीं। मेरा इंटेंशन तो क्लियर है, एक बंदा भी देख ले, 10 बंदे देख ले तो बहुत वेल एंड गुड, एज लॉन्ग एज मेरा नॉलेज काम में आ रहा है। सो टुमारो वी विल लुक इनटू अदर डिपार्टमेंट अपार्ट फ्रॉम F&D। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको समझ में आ रहा है, एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस मैटर। ओके, सो वी विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू।